Good morning, student. I am Hussain sir. Today we will see chapter number 2 of economics, consumer behavior. In consumer behavior, we have to see utility analysis. We all know that today consumer is the king of the market and all sellers and producers are trying to attract consumer towards their product to increase in the sale of commodity and to earn more profit. For that, they are taking the help of various advertising campaign and increase the sale of commodity. Now we also know that human wants are unlimited and scarce are limited to satisfy these unlimited want, and we also know that all wants cannot satisfy at one time. That's why here we have to make the selection and choices of the wants and fulfill the wants. Now generally goods are demanded by the consumer for satisfying their wants. They demanded the commodities because it possesses utility. Now what is meant by utility? In this chapter we will see the meaning of utility, features, types of utility, concept of utility, relationship between marginal utility and total utility, and diminishing marginal utility and equimarginal utility. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूटिलिटी. व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? द वर्ड यूटिलिटी इज इजी टू understand but difficult to explain. I already told you that goods are demanded by the consumer for consumption to satisfy their wants. Why we are demanding the goods? Because we know that those goods which we are demanding can satisfy our wants. यूटिलिटी हम किसे कहेंगे? देखिए, जनरली गुड्स जो डिमांड किए जाते हैं या ख़रीदे जाते हैं कंज्यूमर के ज़रिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर उन गुड्स को ख़रीदता है क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि वो गुड्स में वो कैपेसिटी है जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी क्या होंगी? इट मीन्स यूटिलिटी इज़ द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन wants, which satisfy human wants. It is called utility. In other words, we can say that utility is the want satisfying power of a commodity. यूटिलिटी किसे कहेंगे? प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरत को पूरा करने की जो कैपेसिटी और क्षमता होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, उसी को बोला जाता है यूटिलिटी. उसी को कहते हैं यूटिलिटी. व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टन वांट्स एंड ही कंज्यूम कमोडिटी विच लीड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच वांट्स. इट मीन्स दैट द कमोडिटीज हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. देयरफॉर इन जनरल टर्म्स वी से दैट अ कमोडिटी इज यूजफुल इफ इट सेटिस्फाई आवर वांट. हर इंडिविजुअल या लोगों के ज़रिए जब कमोडिटी जो है ख़रीदी जाती है कंजम्पशन के लिए, वो इसीलिए ख़रीदी जाती है क्योंकि उसमें ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति होती है, ताकत होती है. इसका मतलब यूटिलिटी का मतलब हुआ प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरत को पूरा करने की जो शक्ति है, ताकत है, कैपेसिटी है, उसी को हम यूटिलिटी कहेंगे. इन इकोनॉमिक्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉल्ड यूटिलिटी, and utility is the capacity of a commodity to satisfy particular wants. प्रोडक्ट के अंदर जो ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति होती है उसी को कहा जाता है यूटिलिटी. Also, utility and satisfaction are two different terms, but they are interrelated.
utility is pre-consumption and satisfaction is post-consumption. Utility is assumed satisfaction, but satisfaction is something which is actually realized after consumption of that product. Here some of the student or people, they confuse that, they think that utility is the satisfaction, but utility is the pre-consumption and the satisfaction is the post consumption. Here in this picture we can see the example. Here when we purchase some food, if we are hungry, then we will purchase the food to satisfy our hungerness, our this want. Before consumption, we know that this food can satisfy our this want. It means we assume here, before consumption we assume here this commodity can satisfy our want. That means utility is the here after consumption of this commodity, this food, we get the satisfaction. We realize that after eating this food, which we realize something, that is a satisfaction. That's why it is utility is different from satisfaction. Now from the above definitions, it is clearly that utility, the consumption of goods and services depend on utility. Every product possesses power to satisfy human wants. This inner quality of a commodity which satisfy human wants is called a utility. Every product which demand by the consumer for the consumption, it possesses utility, and it means it has some capacity to satisfy human wants, and that capacity is called utility. Here we clearly understand that the difference between utility and satisfaction. Utility is the pre-consumption function. We just assume the satisfaction in the product, and satisfaction we will realize it after the consumption. Satisfaction is the post-consumption process, something which actually realize after the consumption. It will called satisfaction. Now let us see फीचर ऑफ यूटिलिटी. अब यहाँ पे हम फीचर देखने वाले हैं यूटिलिटी के, और फीचर जो है आपके टेक्स्ट बुक का और इसका सीक्वेंस थोड़ा हमने चेंज किया है ताकि आपको ये स्पेशल कोड पता लगे और ये कोड से आप जो है ये सारे के सारे फीचर याद रख सके. फीचर का कोड ही यहाँ पे फीचर्स देखिए, फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ डिमांड, उसका पहला अल्फ़ाबेट एफ लिया है. ethical significance, not considered means ethically neutral, depend from usefulness, the measurement not possible, utility subjective concept है, relative concept है, different from pleasure, different from satisfaction. अब इसको हमने स्पेशल कोड बनाने के लिए इस तरह की हेडिंग दी है, थोड़ी टेक्स्ट बुक से अलग है ताकि आपको ये कोड उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो याद रहे और इससे आप ये सारे के सारे पॉइंट भी याद रख सकें. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड.
every product which are demanded by the consumer is possesses utility, is possesses utility, and consumer demanded the goods because they know that these goods can satisfy their wants. That's why utility is the basis of demand. A person will demand a commodity only if it has a utility for him. कोई भी कस्टमर जब कोई भी गुड्स डिमांड करता है तो उसे पता होता है कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, इसलिए वो प्रोडक्ट को वो डिमांड करता है। अगर उसे पता है कि ये प्रोडक्ट उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा। अब इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, कई इसके एग्जांपल है। अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम अगर लेते हैं कूलर का, एयर कंडीशनर का। अगर हम ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें पता है कि वहाँ पे छोटा जो है कूलर जो है वो हमें जो है हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे समय जो है आप जो है अगर कूलर लेंगे तो या तो बिग साइज़ का कूलर लेंगे या फिर आप वहाँ पे एसी लेंगे, एयर कंडीशन जो है आपको परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पता है कि स्मॉल साइज़ का कूलर जो है या फ़ैन जो है वो आपकी उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। इसका और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एन एजुकेटेड पर्सन विल नॉट डिमांड अ बुक एज इट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर हिम, अ स्टूडेंट विल डिमांड अ बुक एज इट हैज़ यूटिलिटी फॉर हिम। अनएजुकेटेड जो पर्सन होता है वो बुक्स की डिमांड नहीं करेगा क्योंकि वो बुक्स में उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, जबकि वो बुक्स जो है एक स्टूडेंट जो है वो डिमांड कर सकता है क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए उस बुक में यूटिलिटी है। तो ये जो डिमांड की बेसिस होती है, डिमांड का बेस ही यूटिलिटी है। प्रोडक्ट जो जनरली डिमांड किए जाते हैं बिकॉज उसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, ताकत है। अगर वो प्रोडक्ट ज़रूरत को पूरा ना कर सके तो उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ नहीं किया जा सकता और वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की जा सकती। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर था, फॉर्म द बेसिस फॉर डिमांड। और सेकंड आप इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, अ स्टूडेंट परसुइंग आर्ट्स विल नॉट डिमांड अ कैलकुलेटर एज इट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर हिम, अ स्टूडेंट परसुइंग कॉमर्स विल डिमांड इट। कैलसी जो है वो कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, कैलकुलेशन जो है वो करने के लिए उनके काम में आएगा, जबकि साइंस जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है वो। नाउ सेकंड फीचर, ethically neutral. The concept of utility does not consider whether the commodity satisfy a good want or a bad want. The concept of utility has no ethical consideration. It is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, what is desirable or undesirable. A commodity can have utility even if it satisfies a bad or unethical want. Utility does not consider any moral or ethical factor. In short, it is ethically neutral. अब वो जो प्रोडक्ट होता है जिसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता होती है तो यूटिलिटी को हम जो है इथिकली न्यूट्रल कहेंगे। हम जो है इस तरह नहीं कह सकते कि जो है इसमें अच्छी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है या बुरी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, इससे हम अच्छा काम कर सकते हैं या इससे हम गलत काम कर सकते हैं। तो जो है जो आप प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो प्रोडक्ट में ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है। वो प्रोडक्ट से चाहे आप अच्छा काम करें या उससे आप कोई जो है उसका गलत यूज़ करें, तो उसमें जो यूटिलिटी है वो इथिकली न्यूट्रल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका ले सकते हैं, अ गन हैज़ यूटिलिटी फॉर ए सोल्जर एज वेल एज अ टेररिस्ट। सोल्जर के लिए भी उसमें जो है यूटिलिटी और टेररिस्ट के लिए भी उसमें यूटिलिटी। और दूसरा बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं नाइफ़, चाकू का अगर हम एग्जांपल लें तो बेस्ट एग्जांपल है, अ नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट vegetables, fruits, as well as it can be used to harm someone.
both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. Thus utility is ethically neutral. प्रोडक्ट एक ही है, नाइफ, चाकू, गन, ठीक है, वही चाकू से आप सब्जी भी कट कर सकते, वेजिटेबल भी कर सकते, और वही चाकू से आप किसी दूसरे को नुकसान भी जो है पहुंचा सकते हैं, किसी दूसरे को जो है फिज़िकली जो है आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वही है लेकिन जो है उसका यूज़ अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि यूटिलिटी जो है वो इथिकली न्यूट्रल है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, also not the same as useful. It means utility differs from usefulness. Utility is the capacity of commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in use of a commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict, drunkard person, but has no usefulness. In other words, we can say that usefulness is the benefit that is derived by consuming a commodity, whereas utility is the want satisfying power of a commodity. A commodity having utility need not be useful. यहाँ पे यूटिलिटी जो है वो यूज़फुल से अलग होती है थोड़ी। वो प्रोडक्ट जिसमें हमारी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो, फ़ायदेमंद हो। अब कुछ ऐसे कमोडिटी होती है जो जिसमें यूटिलिटी भी होती है और वो यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमोडिटीज़ भी है जो जिसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता तो होती है लेकिन वो हमारे सेहत के लिए और हेल्थ के लिए अच्छे नहीं भी होते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल बताया मिल्क का, तो मिल्क में यूटिलिटी भी है और वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है, वो हमारी ज़रूरत को पूरा भी करता है और हमको फ़ायदा भी पहुंचाता है। लेकिन जो अल्कोहल है, लिक्वर है, उसमें जो है सिर्फ ड्रंकर्ड पर्सन के लिए यूटिलिटी है, वो उसकी ज़रूरत को पूरा तो कर देंगी लेकिन वो उसके लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यूज़फुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस बोथ आर डिफरेंट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। नेक्स्ट, द मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। Utility is a psychological concept. It is intangible and invisible. It is an inherent feelings, therefore it cannot be measured cardinally, that is in number. Utility is the psychological concept and we know that it cannot be measured in numbers. Utility जो है वो psychological concept है और ये इंटेंजिबल होता है। प्रोडक्ट के अंदर जो ज़रूरत को पूरा करने की कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी इंटेंजिबल होती है जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा कहा तो गया है कि वो नंबर में एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन आगे जब हम इसके एजम्पशन देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें यूटिलिटी को समझने के लिए उसको हम कार्डिनली जो है मेज़र कर पाएंगे नंबर के फॉर्म में, ताकि हम उसको जो है समझ सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ एनी वन इज़ सो हंग्री एंड इफ़ ही ईट सम फूड देन ही विल गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम दैट फूड। अगर कोई बहुत ज़्यादा भूखा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा भूखा है और ऐसी सिचुएशन में वो खाना खाता है, रोटी खाता है, तो उस रोटी में उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेंगी क्योंकि उसकी इंटेंसिटी वांट की बहुत ज़्यादा है। वो भूख उसको ज़्यादा लगी थी इसलिए उसको ज़रूरत को जो है उसने पूरा किया। लेकिन वो जो उसने रोटी खाया, अब वो खाना खाते समय पहली रोटी खाएगा, फिर दूसरी, फिर ऐसा वो कंजम्पशन करता रहेगा। तो पहली जब रोटी वो खाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेंगी।
अब जब दूसरी खाएगा तो पहली रोटी से थोड़ी कम, क्योंकि उसका पेट अब भरता रहेगा, उसकी ज़रूरत पूरी होती रहेंगी। तो अब उसमें वो चीज़ जो वो कंज्यूम कर रहा है उसमें जो उसको यूटिलिटी मिल रही थी अब वो थोड़ी कम कम होते जाएंगी। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पहली यूटिलिटी में जो पहली रोटी में 100 यूटिलिटी मिली, दूसरी रोटी में 50 मिली, 60 मिली। तो इसको जो है हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए जब हम एजम्पशन देखेंगे तो हमें नंबर की ही मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर फैक्टफुली हम देखें तो इसे यूटिलिटी को हम नंबर्स में जो है डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, इट कैन नॉट बी सेड दैट गुड डे बिस्किट हैज़ 5 यूटिलिटी एंड डार्क फैंटेसी बिस्किट हैज़ 10 यूटिलिटी। हाउएवर यूटिलिटी कैन बी मेजर इन रिलेटिव टर्म्स। अब हम ये नहीं कह सकते कि दो सेम बिस्किट ही पॉकेट है, लेकिन एक बिस्किट के पॉकेट में कम यूटिलिटी है और दूसरे में ज़्यादा यूटिलिटी है। यूटिलिटी ऑफ फूड इज़ हायर फॉर ए पर्सन हु इज़ हंग्री एंड लोअर फॉर ए पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। अब वो जो फूड है आप देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा हंगर पर्सन होता है, भूखा आदमी होता है, उसमें खाने उसके लिए उस खाने में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है, और वो बंदा जिसका पेट भरा है और जिसको कुछ भी भूख नहीं है उसके लिए उस प्रोडक्ट में कुछ भी यूटिलिटी नहीं होती। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो यूटिलिटी को नंबर्स में जो है मेज़र फैक्टफुली नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट, यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। It means a product may give utility to one person, but the same product may not give as much utility to another. Therefore, utility is a subjective concept, as the utility of commodity differ from person to person on account of differences in taste, preferences, habits, surroundings, age, occupation, etc., etc. We already know that it is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in the taste, habit, preferences, like, dislike of the person. The best example of this is, we can take the best example, some non-veg, some fish products. Fish product has a utility for non-vegetarian person. It does not possess any utility for vegetarian person. The best example of this is, second example we can take, a measuring tape will have more utility to a tailor as compared to a cobbler. These are some example of the subjective concept. सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि यूटिलिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक जो प्रोडक्ट है, कंजम्पशन के बाद एक पर्सन को जो यूटिलिटी वो दे रहा है दूसरे पर्सन को भी वो सेम उतनी ही यूटिलिटी दे। प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है अलग अलग पर्सन को अलग अलग हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा है कि फ़िश करी जो है ये, इसमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नॉन वेजिटेरियन के लिए और बहुत कम यूटिलिटी वेजिटेरियन के लिए, या कुछ भी नहीं है, वो कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगी। और ये जो टेप आप देख रहे हैं मेजरिंग टेप, ये टेलर के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें यूटिलिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो यूटिलिटी इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। नेक्स्ट, relative concept. It also change from place to place, time to time. Utility of a commodity changes from time to time and place to place. The best example of this is AquaGuard water purifier has more utility in the monsoon season compared to other season because the risk of waterborne disease is high. Or second example we can take
रेनकोट और अम्ब्रेलास. Raincoat and umbrellas have more utility in monsoon season for a person as compared to other season. These were the example of relative concept. The product is same, but this will provide the different utility at different occasion and different season. Second example is a room freshener has more utility in bathroom as compared to the drawing room. Next, even different from pleasure. Pleasure means खुशी. Utility is different from pleasure. Utility and pleasure are different. A commodity may have utility, but it is not necessary that its consumption will give pleasure to the consumer. A commodity may possesses utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, an injection for a patient has utility because it cures the ailment, but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him. यूटिलिटी और खुशी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. वो प्रोडक्ट जिसमें ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि जब उसे कंज्यूम किया जाए तो कंजम्पशन के बाद कस्टमर को उससे खुशी भी मिले. इसका एग्जांपल हमने अभी देखा कि इंजेक्शन जो है वो पेशेंट के लिए उसमें यूटिलिटी है, वो उसकी बीमारी को ठीक करेगा, उसको जो है थोड़ा बहुत जो है रिलीफ पहुंचाएगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो इंजेक्शन से उसको खुशी मिले. इंजेक्शन लेने से पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द होता ही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट में वो जो ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता है, कंजम्पशन के बाद उसे उससे खुशी भी मिले. तो यहाँ पे यूटिलिटी ये प्लेजर से भी डिफरेंट है. और सेकंड एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक हैज़ यूटिलिटी फॉर ए स्टूडेंट बट ही मे नॉट डिराइव प्लेजर फ्रॉम रीडिंग इट. इस सेकंड एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए बुक्स में यूटिलिटी है, वो पढ़ेंगे उसको तो एग्ज़ाम में पास होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे उनको खुशी भी मिले. एक सेकंड एग्जांपल होता है. एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हमने ये देखे हैं. नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी आर डिफरेंट. स्टार्ट में ही हमने देखा था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया द डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी एंड satisfaction. Utility is the pre-consumption process and satisfaction is the post-consumption process. Utility is the want satisfying power of a commodity. It is assumed satisfaction, but satisfaction which is actually realized derived after the consumption. यूटिलिटी ये प्री कंजम्पशन प्रोसेस है जिसमें हम जो है सेटिस्फैक्शन एज्यूम करते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत को पूरा कर देगा, हम इससे सेटिस्फाई होंगे. लेकिन सेटिस्फैक्शन वो है जो हम वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद रियलाइज़ करते हैं. अब ज़रूरी नहीं कि सेटिस्फाइड हो जाए हम कंजम्पशन के बाद. जो भी चीज़ हमें रियलाइज़ होती है कंजम्पशन के बाद उसे हम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वांट. यूटिलिटी it also depend on the intensity of want. If intensity is high, the product will be more useful, there will be more utility in that product. If intensity of want is less, there will be less utility in that product. यूटिलिटी जो है वो ज़रूरत की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड होता है. अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ऐसे समय अगर किसी पर्सन को किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसी सिचुएशन में उसे वो प्रोडक्ट मिल जाए
तो वो प्रोडक्ट में उसके लिए बहुत ज़्यादा जो यूटिलिटी होंगी। लेकिन अगर किसी को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है कुछ खास, फिर भी अगर उसे वो प्रोडक्ट मिले तो उसमें उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भूखा आदमी है, इफ़ देयर इज़ एनी हंगर पर्सन, इफ़ ही गेट द फूड इट विल प्रोवाइड मोर यूटिलिटी फॉर हिम। अगर किसी भूखे इंसान को कोई खाना अगर मिल जाए या कोई रोटी मिल जाए तो उस रोटी में उसके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होंगी। लेकिन अगर वही रोटी, सेम प्रोडक्ट ऐसे पर्सन को दिया जाए या मिले जिसको भूख नहीं है, जिसका पेट भरा है, तो वो सेम प्रोडक्ट जो है उस सामने वाले दूसरे पर्सन को कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा या उसे कम यूटिलिटी उसमें मिलेगी। तो देखिए, हमने यहाँ देखा है प्रोडक्ट जो है वो सेम है बट इट प्रोवाइड द डिफरेंट यूटिलिटी। प्रोडक्ट एक है लेकिन ये जो है अलग अलग तरह की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। द यूटिलिटी ऑफ नोट्स इज हायर व्हेन एग्जाम आर क्लोजर एज द वांट फॉर नोट्स इज इंटेंस। नोट्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जब एग्ज़ाम करीब आती है। एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि हम जो है ये आसानी से आप समझ सकें। जब एग्ज़ाम करीब आती है तभी नोट्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सेकंड एग्जांपल है, द यूटिलिटी ऑफ द फैन इज़ हाई व्हेन द वेदर इज़ वार्म आउटसाइड एज द वांट फॉर द फैंस ब्रीज इज़ हाई। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या हम बाहर से आए, गर्मी के समय ही फ़ैन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे समय फ़ैन की जो है, फ़ैन में यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। These were some features which we have seen in the utility analysis। ये सारे फीचर थे जो हमने यूटिलिटी एनालिसिस में देखे। होप यू विल अंडरस्टैंड these features। If you like the video, if you understand the video, like and share our video and subscribe to our channel। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।